Hello friends, this is Preet Thakur and welcome back to my channel. So in my previous videos under business valuations, what we have been studying is about those set of companies which are following a proper pattern of constant growth rate in their dividends every year by year. राइट मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ईयर फर्स्ट में ग्रोथ रेट इज 15% ऑफ द डिविडेंड्स, ईयर 2 में 15% ग्रो रहा है डिविडेंड, ईयर 3 में 15% ग्रो रहा है डिविडेंड. मतलब देयर वाज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स एवरी ईयर व्हिच द कंपनी वाज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, अ सीक्वेंस. ओके, बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट दोस कंपनीज हु आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ पैटर्न्स? Okay, there can be some companies who, you know, for the first 2 years they are giving growth rate of 20%. Okay, and in the remaining 4 to 5 years they are just giving a growth rate of dividends in their 5%. Okay, मतलब 5% ग्रोथ दे रहे फिर डिविडेंड्स में. मतलब पहले 2 साल 20%, नेक्स्ट 5 साल 5%. So it's a non-constant growth rate now. Right, so we will be studying something about a dividend discount model for a non-constant growth rate of dividends which the company is following every year. Okay, so how to do that, what is the process, what is the step-by-step journey, and how to reach the ultimate destination. अपना ultimate destination क्या होता है इसमें दोस्तों? The ultimate destination is to find the current market price of a stock. तो वो कैसे करना है? We will be studying that in a very good detail in this particular session. Okay, so for that thing, just look at my Excel sheet very carefully now. All eyes on your Excel sheets. Okay, so what the first thing that we will be studying about here is, in a dividend discount model for a non-constant growth approach, right, there exists a 2-stage of dividend growth, right? 2 स्टेज ऑफ डिविडेंड ग्रोथ. जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, पहला स्टेज कौन सा होता है? सुपर नॉर्मल स्टेज होता है. राइट, लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली. फर्स्ट स्टेज इज समथिंग कॉल्ड एज हाई ग्रोथ रेट फॉर फर्स्ट 2 years, फर्स्ट n years मतलब फर्स्ट 2 years, राइट, विच इज अ सुपर नॉर्मल पीरियड. मतलब पहले 2 साल ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 20% रहेगा. राइट, इट्स अ वेरी गुड रेट. राइट, एंड द सेकंड स्टेज इज समथिंग कॉल्ड एज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर एवर देन आफ्टर. राइट, मतलब 2 साल खत्म होने के बाद अ कंपनी इज फॉलोइंग अ नॉर्मल पीरियड. राइट, सुपर नॉर्मल नहीं, अभी सिर्फ कंपनी ग्रो कर रहा है डिविडेंड्स 5% के हिसाब से. ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ 2 स्टेज ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विच इज एग्जिस्टिंग इन अ नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड मॉडल. Okay, my dear friends, and there are certain terms which we should remember very nicely. For example, देखो मेरा क्लाउड्स देखो यहाँ पे, D0 means the current dividend. मतलब कंपनी अब तक क्या डिविडेंड्स देती आ रही थी पर शेयर. For example, company is declaring a rupees 1.5 dividend per share. Right, so this is the current dividend. D0 मतलब current dividend. Again, I repeat, D0 मतलब current dividend. G means the growth rate of the dividend per year. Right, मतलब कितना परसेंट से ग्रो कर रहे डिविडेंड्स. Okay, and the K means the expected return on the stock. Right, there are certain investors who expect certain type of returns from a particular stock. Some might expect 10%, some might expect 20%, and so on. Right, so what K means here is a expected return on the stock which an investor is expecting for himself. Okay, ठीक है, इधर तक चलो सब कुछ क्लियर हो गया. नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स. देखो किसी भी चीज का जो लाइफ में एक तरीका होता है ना, वी शुड लिव विद अ प्रॉपर प्रोसीजर एंड स्टेप्स एंड प्रॉपर वैल्यूज इन अवर लाइफ. Right, this is the mantra of living life, and as good as that, the simple mantra for solving any kind of sum is, right, is we have to follow certain steps and procedures. Okay, so the certain steps to calculate the current market price of a stock using a non-constant growth rate model are as follows. Okay, so let's read it one by one. Okay, my dear friends, yes, so सबसे पहला step क्या बोलता है? We have to calculate the expected dividends for all the years with high growth rates, super normal period. ठीक है, मतलब देखो अभी कैसे हम लोग ना एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, वरना कैसे बहुत बोरिंग हो जाएगा. इफ यू कंटिन्यू कीप ऑन रीडिंग दिस स्टेप्स ना, इट विल बी अ बोरिंग सिचुएशन फॉर यू. राइट, सो व्हाट वी विल डू इज जस्ट स्टार्ट विद द एग्जांपल. सपोज अ कंपनी इज गिविंग द करंट डिविडेंड दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग इज 1.5 रुपीज पर शेयर. दिख रहा है कर्सर मेरे ध्यान से? ओके, एंड द ग्रोथ रेट for the first 2 years, ध्यान से पढ़ो ब्रैकेट्स में ये दो चीज. For the first 2 years, the growth rate that a company is following in the dividends is 10%. Okay, and after the completion of 2 years, the dividend is growing by 5% every year. मतलब पहला 2 साल सुपर नॉर्मल पीरियड है, right, and the next after that 2 years is a super, it's like a normal period for that. Right, so now read this sentence very carefully now. Where to first step is calculate the expected dividends for all the years with higher growth rate. ठीक है, मतलब पहले 2 साल हायर ग्रोथ रेट था 10% का. सो यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स फॉर द फर्स्ट 2 years. ओके, ये तो करंट डिविडेंड है 1.5. तो डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर कितना रहेगा, डिविडेंड फॉर द सेकंड ईयर कितना रहेगा, ये अभी हम लोग को ढूंढना है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, एंड द के इज व्हाट? के इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक विद द इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग, वो 5% है.
ठीक है, मतलब कंपनी से अपना इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5% डिस्काउंट, मतलब कैसे 5% वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, 5% रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ओवर हियर। व्हाट आई हैव डन इज फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिविडेंड फॉर ऑल द 4 years। 4 years नहीं, चलो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूं 2 years, बिकॉज अपना सुपर नॉर्मल पीरियड 2 years का, राइट। सो पहले अपने को कैसे 2 साल 4 साल में सबका डिविडेंड चलो ढूंढ के रखी दो, ओके। समझ लो कि पहला 4 साल अभी यहां पे दिख रहा है हम लोग को, राइट। डिविडेंड फॉर द 0 पीरियड, मतलब करंट डिविडेंड इज हाउ मच 1.25 1.25 व्हिच इज गिवन टू अस। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिविडेंड फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 व्हिच आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। अब ये कैसे ढूंढना है, लेट्स स्टडी दैट स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द फॉर्मूला फॉर दैट इज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए अपने को पिछला साल का डिविडेंड पता होना चाहिए, उसमें फिर हम लोग ग्रोथ रेट को ऐड करेंगे और हम लोग ढूंढेंगे फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना है, ओके। आई रिपीट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर वी शुड नो द डिविडेंड फॉर द प्रीवियस पीरियड। मतलब फर्स्ट ईयर के पहले प्रीवियस पीरियड क्या है, इट्स अ करंट रेट ऑफ डिविडेंड, okay, and then after adding the growth factor in the dividend we can easily find out the dividend for the first year, okay my dear friends, right. So for that thing what we will do is we will apply the formula d1 is equals to d0 into 1 plus g means the growth factor. So d1 is equal to d0 मतलब कितना 1.25 which is already given to us, नहीं 1.5, सॉरी यहाँ पे कैसे कुछ मिस्टेक्स मैंने भी कर दी है, ठीक है। 1.5 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, 1.5 कर दिया, okay. So 1.5 is something which is given to us, 1.5 into 1 plus g, the growth factor. The growth factor is how much? 10%. Now 10%, my dear friends, it can be written as 0.1 also. 10 divided by 100, 0.1. So 1 plus 0.1, it's come to 1.1. So अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल कैलकुलेशन खुद से भी आप कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई, 1.5 into 1.1 gives us nothing but 1.65. So the dividend for the first year at a growth rate of 10% is going to be 1.65 rupees per share. मतलब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में डिविडेंड में कंपनी क्या कर रही है, 1.65 रुपीस के पर शेयर से कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है, ओके। सो 1.65 यहां से कॉपी किया, यहां पे नंबर लाइन पे जाके पेस्ट कर दिया। सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग ईयर्स, एक और मैं आपको समझा देता हूं, D2. Let's see now how to find the dividend for the second year. Okay. So for that purpose, what I said, in order to find the dividend for the next year, we should know the dividend for the previous year. मतलब D2 के पहले वाले ईयर कौन सा है, D1 हो गया। तो D1 कितना ढूंढा था हम लोग ने, 1.65, राइट। नंबर लाइन पे यहाँ पे आ गया है 1.65, तो 1.65 यहाँ पे रख दिया और उस पे ग्रोथ फैक्टर ऐड कर दिया 1 प्लस जी का, ठीक है। सो द कंपनी इज नाउ प्रोवाइडिंग अ डिविडेंड ऑफ 1.82 रुपीज पर शेयर डिविडेंड है ये, ठीक है, 1.82। अगेन इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। सिमिलरली फॉर D3 एंड सिमिलरली फॉर D4, हो गया, कॉपी पेस्ट करके चलो नंबर लाइन तैयार हो गया अभी, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, लेट्स फॉलो द स्टेप्स नाउ, okay. Calculate the expected dividends for all the years with high growth rate which is following a supernormal period. So supernormal period क्या था हमारा friends? For the first 2 years the supernormal period was 10% growth rate था अपना dividends का, ठीक है। So for the first 2 years the dividend was 1.65 1.82 हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, हम लोग तो इनफैक्ट कैसे 4 साल का ढूंढ के रख दिया है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे जाइए, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द हायर ग्रोथ रेट। मतलब सुपर नॉर्मल जो पीरियड था ना हमारा, अ कंपनी विच वाज फॉलोइंग अ सुपर नॉर्मल पीरियड, राइट, सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट था डिविडेंड्स का, उतने का अपने को करंट मार्केट प्राइस ढूंढना पड़ेगा पहले, राइट। तो करंट मार्केट प्राइस कैसे ढूंढना है उसका, चलो अभी हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। Okay, so the formula for finding the current market price of a stock is nothing but dividend for the next year upon the expected return from a stock minus the growth rate of a supernormal period वाला dividend period, ठीक है। I repeat once again, ध्यान से सुनना इसको, ये चीज अपने को अभी करंट मार्केट प्राइस ढूंढना है एज पर अवर सेकंड स्टेप। तो कैसे ढूंढने का उसको, फॉर दैट वी शुड नो दी डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना, देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे D3, पर उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, D2 पता होना चाहिए, विच इज नथिंग बट 1.82, कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड द ग्रोथ फैक्टर ओवर हियर इज 0.05 नाउ, बिकॉज फॉर द सुपरनॉर्मल पीरियड पहले 2 साल कितने से ग्रो कर रहा था वो डिविडेंड, 10% से ग्रो कर रहा था। नाउ इट इज गोइंग टू बी 5%, तो 5 डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट 0.05, राइट। तो जी फैक्टर में यहाँ पे 0.05 डाल दिया और कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन किया, तो 1.91 आपको आंसर मिल जाएगा वहां पे, राइट।
Easy, my dear friends. So for that thing now what we'll do is current market price formula कैसे देखो, current market price को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. तो उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, द करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट पीरियड अपॉन डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ स्टॉक विच द इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को इतना मिलना चाहिए. कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, 5% एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, माइनस द ग्रोथ रेट. ठीक है, ग्रोथ रेट मतलब कितना से ग्रोथ होने वाला हो, मतलब सुपर नॉर्मल पीरियड में ग्रोथ कितना हो रहा था, 10% से ग्रोथ हो रहा था. तो यही जी फैक्टर में हम लोग यहां पे 10% डाल देंगे. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट. मैं आपको ना कैलकुलेट करके बता देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इज इक्वल्स टू D3, चलो लिंक कर लेता हूं इसको, सेल को लिंक किया, अपॉन K माइनस G. K इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ स्टॉक विच इज नथिंग बट 5% माइनस द ग्रोथ रेट. ठीक है, ग्रोथ रेट फॉर अ सुपर नॉर्मल पीरियड. ग्रोथ रेट सुपर नॉर्मल पीरियड का कितना था, 10% था. तो इसको भी लिंक कर दिया, एंटर किया, 38.12. सो दिस इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक as of now. Okay, now after having performing these two steps, now let's go on and go to the third step now. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, यू हैव टू डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, मतलब जब भी जो भी अपना फ्यूचर कैश फ्लोज है ना, ये देखो 1.65, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड आपको कितना मिलने वाला है, 1.65 रुपीज पर शेयर, 1.82 रुपीज पर शेयर, 1.91, 2.10 पर शेयर. ठीक है, हमारा फ्यूचर कैश फ्लोज है. इस सभी को अपने को डिस्काउंट करना है किसके साथ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर, 5% एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल. ठीक है, थोड़ा सा कम है यहाँ पे, इक्विटी के हिसाब से थोड़ा कम रखा हुआ है, मतलब कैसे 15% एक्सपेक्ट करना चाहिए तो नॉर्मली, पर चलो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5% रखा हुआ है. ठीक है, 5%. सो अपने को 5% डिस्काउंट रेट के साथ अपने को इसको डिस्काउंट करना है. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स परफॉर्म द स्टेप्स वन बाय वन. अपने साथ साथ हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे. सो फॉर दिस थिंग आई एम वेरी मच श्योर कि आपको एक चीज पता रहेगा, अपना टाइम वैल्यू में कैश फ्लोज को डिस्काउंट कैसे करने का उसका फॉर्मूला तो आप लोग को मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता रहेगा, राइट. सो फॉर दैट थिंग व्हाट वी विल डू नाउ इज इक्वल्स टू, वी विल स्टार्ट लिंकिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज. द फर्स्ट कैश फ्लो इज 1.65 डिवाइड बाय 1 प्लस R. मतलब अपने को अपना कैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है अपना 5% रेस टू 1, क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो रेस टू 1 करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं लगा है रेस टू 1 तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. So raised to 1 it comes to nothing but 1.57. Okay, now for D2, the cash flow D2 is how much, 1.82. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, is equals to D2, चलो 1.82 कर लिया, लिंक किया सेल को, अपॉन 1 प्लस R, अगेन 5%, रेस टू, नाउ दिस इज फॉर अ पीरियड 2, सेकेंड ईयर. ठीक है, तो रेस टू 2 कर दिया हम लोग ने, एंटर किया, 1.81 आ गया. यहाँ पे मैंने सेल में ना फॉर्मुलास भी कॉपी करके रखा हुआ है, राइट. यहाँ का जो फॉर्मुलाज है ना, आई कॉपीड दिस फॉर अ सिंप्लिसिटी पर्पस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस नाइसली. ओके, सो अपने को D1 D2 हम लोग ने क्या किया, दोनों साल के डिविडेंड्स को हम लोग ने यहाँ पे डिस्काउंट कर लिया, 1.57 1.81, राइट. ये अपना डिस्काउंट किए बिना कैश फ्लो था, वो डिस्काउंट किए बिना कैश फ्लो था, ये दोनों को डिस्काउंट कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लिया, 1.57 1.81 आ गया. ठीक है, नाउ वी हैव टू ऑल्सो डिस्काउंट द करंट मार्केट प्राइस. नाउ ये कैसे डिस्काउंट किया हुआ नहीं है, अपना स्टेप क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3, डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. तो अगर ये दोनों को हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसको भी डिस्काउंट कर लेना चाहिए फिर तो. ठीक है, अपना करंट मार्केट प्राइस को, तो 38.12 को हम लोग डिस्काउंट करेंगे अपॉन 1 प्लस R. एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 0.05, तो 5 डिवाइड बाय 100 इज 0.05, तो 1 प्लस 0.05 रेस टू 2. ठीक है, तो रेस टू 2 कर दिया, तो अपना अमाउंट कितना आएगा फिर अभी 38 रुपीज एंड 2 पैसे. ये अपना करंट मार्केट प्राइस है, राइट. सो व्हाट वी डिड इन स्टेप नंबर 3, हम लोग ने सभी फ्यूचर कैश फ्लोज को 1.65 1.82 38.12 सबको कैसे हम लोग करंट मार्केट प्राइस के साथ साथ डिविडेंड्स के अमाउंट्स को भी सबको हम लोग ने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ डिस्काउंट कर दिया. ठीक है, सो द प्रेजेंट वैल्यू नाउ इज 38.02. ओके, present value now is 38.02. Now what you will do, come on to step number 4. Now you will add up all the discounted cash flows in order to get the current market price per share. तो ये रहा अपना कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो नंबर 1, डिस्काउंटेड कैश फ्लो नंबर 2, डिस्काउंटेड कैश फ्लो नंबर 3. ठीक है, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 सबको ऐड किया तो 41 रुपीज एंड 41 पैसे. ठीक है, देखो फिगर भी कितना अच्छा है 41.41, नाइस फिगर. ठीक है, तो ये कैसे आपका फाइनल आंसर है.
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, अगर आपको सब कंसेप्ट अच्छे लगे हो, सो यू कैन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. और देखो एक चीज हमेशा याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, कोई अच्छी चीज शेयर करने में तो पैसे लगते नहीं है, राइट? कोई पैसे नहीं लगने वाले. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर कर लो एंड स्टे इन टच विथ मी, ओके? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.